एक सेकंड, एक सेकंड। चंचल, ब्लेसी, मैथिली। यस सर। आप सभी कौन सा आईडी से लॉगिन हुए हैं? वही सर पुराने आपने जो भेजा था। हाँ, वही पुरानी वाली ना, 9850 और हाँ। 123 यस सर। है ना? हाँ, तो मैम देखिए कैसा होता है ना कि एक
ऐश्वर्या ब्लेसी चंचल, आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। हाँ सर, ज्वाइन होंगे। जैसे आप सभी को प्रॉब्लम आ रहा था ना सेम ज्वाइनिंग का, वैसे उन्हें आ रहा है, तो वो ज्वाइन होंगे। तो आपका लेक्चर हो सकता है जो मतलब देर तक चलेगा, क्योंकि कुलसुम मैम का लेक्चर नहीं है ना। यस सर। है ना, अंकिता मैम भी ज्वाइन हो गया अभी, तो शायद वो हो जाएंगे थोड़ी देर में। ओके सर। वेट कीजिएगा। ओके गर्ल्स, अतुल सर ज्वाइन हो गए हैं। हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, पता नहीं, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मेरा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, जितने का हुआ उतने का, फिर अपन मंडे को लेंगे बाकी। स्टार्ट करो, किसका रेडी है पहले? सर मैथिली। मैथिली, ठीक है, स्टार्ट करो। Sir, I'm audible? Hello? Hello? Hello, sir. हेलो। Hello, sir. I'm audible? हाँ, आ रही है आवाज, Sir, बोलिए। screen. हाँ, दिख Sir, रही है। screen दिख रही है स्टार्ट। ना? हाँ, स्टार्ट करो। Yes, sir. The first test is the sit and reach test. In this, our aim is to measure the test of flexibility and the equipments required at the seat reach box, or we can use stairs. Alternatively, we can use stairs for it. Also, and or an end step or a box. The procedure for this is the test involves sitting on the floor with legs stretched or and a stretch ahead. Shoes should be removed, and the soles of the feet should be locked and placed against the box or a stair. Placed against the box or a stair, and the palms facing towards downwards and hands on the top of each side. और जो कि और जो सब्जेक्ट है उसके आगे से लेना है हमें हैंड, और ये रखना है कि हाथ हमेशा दोनों हाथ सेम लेवल पे होने चाहिए, और जिसकी वजह से मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो रीच करने में और मेजरमेंट करने के लिए सही होगा. And with this test, I have found the result as I have reached it till 11 centimeter, and the marks scored according to scoring sheet is 6 marks. And next is the standing broad jump. In this, this test is to measure the explosive power of our legs. The equipment required for this the tape measured or to measure the distance we jump, and non-slip floor for takeoff, and the soft landing area is preferred. The procedure is for the subject can stand behind a line marked on the ground with the feet and with the swinging of the arms behind the knees. Avoid the forward dive. The subject attempts to jump as far as possible and landing on the feet, both feet, without falling backwards. And in these 3 attempts can be allowed. And with this, the jump I have had of 1.29 meter. And with this, I have, according to scoring sheet, I have 7 marks. Next is the shuttle run. In this test, we are here to measure
In this test, we are here to measure the speed and the agility. Equipment required are the stopwatch, marker cones, or any subject to run through one side to another, measuring tape, stopwatch, and non-slip surface. The procedure, this test requires the person to run back and forth between the two parallel lines as fast as possible. And the two cones are fit so at a 10, this is at 5 feet apart, using line markings, and also placed two blocks of wooden at behind the one of the lines, starting at the one opposite the block on the signal. The participant run to another line and picks up the block and returns place it to behind the starting line, then returns place to it behind the starting line, then returns pick the second block and then runs with the back across the line. And in this case, I have I have taken the 5 meter distance, and also had a 13.5 seconds. And with this, I have secured 2 marks according to scoring sheet. And these are and this is the crunch sit-ups. It is to measure the endurance of abdominal and the hip flexor muscles. Equipment required are the flat ground and the stopwatch. And the standing position is lying on your back with your knees bent and the feet flat on the floor. And the arms are folded across back of the neck, and must maintain that no gap between the forearms and the chest at all times. And second person is to hold the lower legs or the ankles. And when to start go command the crunches by raising your upper body forward with the elbows and palms touching the thighs. And with this activity, this is 1 minute activity. In this, 15 crunches has been observed, and with the 15, 6 marks has been provided according to scoring sheet. And next is the medicine ball throw. With this, we required the 2 kg of medicine ball and a tape measure. The subject stands at the line with the feet side by side and slightly apart and facing the direction to which the ball is to be thrown. And ball is held with the hands on the side and slightly behind the center. And the throwing action is similar to that of used as a soccer or a football sideline throw-in. And the subject is permitted to step forward over the line after the ball is released. And with this activity, I have found that the ball has been reached to 2.7 meter to 0.27 meter, which is according to score sheet, it is 1 marks. Okay, done, sir. Hello. हेलो हेलो। Yes, आपने sir. अच्छा किया, लेकिन जो मेडिसिन बॉल थ्रो था उसमें आपने फुटबॉल यूज किया है। हेलो। सर वो 2 kg के अप्रोक्स वेट तक था शायद। नहीं था, लेकिन आपने स्टैंडिंग में लिया है ना उनको। स्टैंडिंग में तो और ज्यादा उनको बॉडी का भी सपोर्ट मिलेगा। हाँ। तो फिर सिटिंग में लेना चाहिए वो। और नहीं सर, चेस्ट वो के बस पास एक से ट्रायल आपको। के लिए था कि मतलब पॉसिबल है या नहीं ऐसा। अच्छा, लेकिन चेस्ट के पास से ही आपको थ्रो करने लगाना है। चेस्ट के पास रखना है, बॉल को दोनों हाथ से होल्ड करके और फिर थ्रो। क्योंकि अभी आप सर के ऊपर से फेंकने लगा रहे हो तो रेंज बढ़ गया ना, हाथ का स्विंग पीछे से, हेड के पीछे से भी स्विंग ले सकते हैं। हाँ, यस सर। है ना? ठीक है, बाकी सब अच्छा किए। और आपका पीडीएफ रेडी है? यस सर, बस वो जो आप आज बताने वाले थे वो बाकी है, इसकी इनफोल्ड मेजरमेंट्स बाकी है। अच्छा, आज तो हो नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, मंडे को सब कंप्लीट कर लेंगे, है ना? क्योंकि मेरा 3 बजे दूसरा एक क्लास है। ओके सर। ठीक है, तो बाकी लोगों को समझ गया होगा कैसा क्या वीडियो बनाना है, क्या करना है। ये अभी मैथिली ने बहुत अच्छे से बताई है, कल आयशा ने भी अच्छा की थी, उसका भी बाकी है। हम मंडे को क्या करेंगे, पहले सबका मैं सिर्फ आपको तीन तीन मिनट दूंगा, आपको एक मिनट में सब कंप्लीट करना है। सिर्फ प्रोसीजर बताना है, ना कि एम बताना है, ना कि आपको सिर्फ प्रोसीजर उसका कंप्लीट करो 1 मिनट में। ठीक है, जितने भी है पटपट हो जाएंगे, बाकी बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपके सब्जेक्ट को मेन पार्ट बताना है, आपके सब्जेक्ट को कैसे बैठाना है वो सब बाकी सबको समझ गया है। ठीक है, फिर मैं बॉडी कंपोजिशन भी पढ़ा दूंगा मंडे को।
और अभी मैं आपको कुछ कल ऑफ है इसलिए कल के लिए कुछ वर्क देता हूँ आपको, थोड़ा सा रीड करके थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के आपको मुझे बताना है कि आपको क्या समझा है उसके बारे में। आपके सिलेबस में होगा न्यूट्रिशन डाइट होगा एक स्पोर्ट्समैन के लिए, देखा है ना आपने? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. स्पोर्ट्स पर्सन को डाइट एक कॉमन पीपल के से अलग होती है, आपको ये पता होगा, क्योंकि वो ज्यादा ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, जिम वर्कआउट करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स खेलते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको डाइट का प्लान अलग होता है। तो वो डाइट प्लान कैसे बनाना, आपको एक नॉर्मल पीपल का, नॉर्मल पर्सन का बनाना आता होगा? डाइट प्लान आता है क्या किसी को? Yes. Yes, है ना, आता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं आप लोग, कुछ और वो है उसका? Balanced diet. बैलेंस डाइट। लेकिन इसमें कैसे रहता है, उसमें भी बैलेंस डाइट में आप क्या, बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट जो डे टू डे लाइफ में हर एक आदमी को लगती है, उसके वेट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से निकाला जाता है ना। कैलोरी, कैलोरी समझती है आपको, कैलोरीज जो अपनी बॉडी में अपने को Yes, sir. रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो कैलोरीज 1.334 कैलोरीज, मैं आपको पूरा चार्ट भेजता हूँ, उसका भी शेयर करता हूँ आपको, मैं आपको वो थोड़ा समझ के, थोड़ा कोशिश करना हो समझने की। एक मिनट। दिख रहा है आपको? No, sir. अभी दिख रहा है? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन डाइट, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट, पहले लिखा हुआ है EER बोलते हैं जिसको, और नीचे देखो सेकंड पैरा में लिखा हुआ है कि बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट BER, लिखा? Yes, sir. हाँ, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मल पर्सन से ज्यादा वर्क करता है। सपोज अगर वो दिन भर में उसका वेट होगा 60 किलो, 60 kg होगा, ओके, तो उसको कैलोरी दिन भर में कितनी लगेंगी वो आपको निकालना आना चाहिए। देखो बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, देखो पहले नीचे वाला दिख रहा है, फॉर एवरी kg ऑफ बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 1.334 कैलोरीज इज रिक्वायर्ड एवरी आवर्स, दिखा ना? Yes, sir. हाँ, तो वो मैंने एक उसके नीचे ब्रैकेट में निकाल के बताया हूँ, देखो 1.334 इंटू 24 आवर्स, 24 आवर्स कितना दिन हो गए? हेलो? एक दिन. एक दिन, है ना, इंटू 60 kg उसका वेट, ठीक है, कितना हो गया, कितना होगा टोटल? 1921 कैलोरीज पर डे, यानी एक 60 किलो का कोई आपका सब्जेक्ट है तो उसको 1921 कैलोरीज पर डे लगती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये बेसिक हो गया उसका। अभी सपोज 70 kg रहता था तो उसका अलग आता था, 80 kg का अलग, 40 किलो वाले का अलग, 50 किलो वाले का अलग, सबका अलग अलग कैलोरीज निकलता है, ऐसा निकालना पड़ता है। आपको क्या याद रखना है, 1.334 कैलोरीज, ठीक है, बॉडी वेट का 1.334। और अगर आपको 2 दिन का निकालना है तो 24 आवर्स में आपको दो और एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 48 आवर्स, है ना। वैसे तो एक दिन का ही निकाला जाता है क्योंकि एक दिन के हिसाब से हम पूरा डाइट प्लान बनाते हैं, समझ रहे हैं आपको? हेलो? हाँ, sir. ऊपर का देख लो एक बार, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी एक्स्ट्रा। आप सपोज कोई
एथलीट 2 घंटा ज्यादा मेहनत करता है ना, 2 घंटा ज्यादा मेहनत करता है बाकी नॉर्मल पर्सन से, तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है ये अपने को उसके साथ ऐड करना पड़ता है, ठीक है, किसके साथ, बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, वहां पे लिखा हो देखो, फॉर ईच आवर ट्रेनिंग यू रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली एन एडिशनल 8.5 कैलोरीज, 8.5 कैलोरीज फॉर ईच केजी ऑफ बॉडी वेट। बेसिक के लिए कितना था, 1.334, और एडिशनल के लिए कितना है, यानी ट्रेनिंग आवर्स के हिसाब से, ट्रेनिंग आवर्स 8.5 कैलोरीज, ठीक है, उसके बॉडी वेट वही बॉडी वेट ही आएगा। अब उसको फाइंड आउट कैसे करना है, इसमें भी 60 केजी का एथलीट है कोई, यानी कोई सब्जेक्ट है आपका 60 केजी का, तो कैसे लिखे, 8.5 इंटू 24 आवर्स, एक दिन का उसका बॉडी वेट इक्वल्स टू 1000, कितना आया, दिख रहा है आपको, 1020 कैलोरीज, है ना। उसके बाद में लिखा हुआ एक्स्ट्रा 2 आवर्स ट्रेनिंग, देखो ब्लैक पेन में एरो करके लिखा है, एक्स्ट्रा 2 आवर्स ट्रेनिंग का ये इतना कैलोरी उसको देना है, कितने घंटे का, 2 घंटे का, यानी हर दिन का, समझा आपको, Yes, sir. है ना। हर दिन वो 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, जो भी उसका कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, प्रोटीन बॉडी का खत्म होता है, कैलोरीज डाउन होते हैं, तो उसको ये इंटेक करना, प्रोटीन लेना। अब ये सब काउंट होने के बाद आपको उनको उनका डाइट प्लान बनाना आना चाहिए। अब आपको समझ गया उसका एक्स्ट्रा एनर्जी कितना था, 1020 कैलोरीज, और प्लस उसका बेसिक एनर्जी कितना था, 1921, इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखो ऐड करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसका, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसको ऐड करके देखो कितना आता है, कितना ऐड किए क्या, हेलो, Yes, sir. ऐड नहीं किया बेटा कोई, 2941, 41. हाँ ठीक है। अब वो 2941 को आपको उसके डाइट प्लान में कन्वर्ट करना है ना। तो उसमें डाइट प्लान में आपको कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीज पता रहना चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज कितनी रहती है वो पता रहना चाहिए पहले तो आपको। पता है किसी को कार्बोहाइड्रेट, देखो लिखा हुआ है मैंने भेजा हुआ, 4.2. 4.2 कार्बोहाइड्रेट, और फैट भी दिया है और प्रोटीन भी दिया हुआ है ना। तो आपको इसका परसेंटेज निकालना आना चाहिए फिर। जैसे यहाँ पर देखो 25% ऑफ 2941, उसका कैलोरीज कितना है कार्बोहाइड्रेट का, 1529. ठीक है, एट 4.2 कैलोरीज, 4.2 कैलोरीज का है ना। अबे 4.2 कैलोरीज को अपने को क्या करना है, इसको डिवाइड। अब ये सब Divide. एथलीट का, हाँ सब एथलीट का अलग अलग होता है, ठीक है। ये सपोज ये अगर शायद एथलीट मतलब ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ट्रैक इवेंट आपको पता होंगे जो, और ओलंपिक्स वगैरह होते हैं उसमें ट्रैक इवेंट होते हैं, वो एथलीट है ना। जैसे वो स्प्रिंटर है या बास्केटबॉल प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है, सबका डाइट अलग अलग होता है। ये जो है ये आपको एथलीट के हिसाब से है, ठीक है। एथलीट मतलब ये रनर है, रनर है उसके हिसाब से ये फील्ड प्लान दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको डिवाइड करेंगे 4.2 से,
जो कैलोरीज निकली उसकी 52%, तो कितना आया उसका ग्राम? 364 दिख रहा है ना? Yes, sir. 364 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसको हर दिन लेना चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट हो गया, वैसा ही नीचे का फैट का है। फैट का परसेंटेज हर किसी को कम रहता है, लेकिन फैट भी बहुत जरूरी है अपने शरीर में। तारीख क्या होता है बहुत बार कि अगर एथलीट का ऑक्सीजन डेप्थ हो जाता है, ऑक्सीजन डेप्थ मतलब उसका थकाव हो जाता है, फटिकनेस आ जाता है, तो वो क्या होता है उसके मसल्स में जो फैट होता है थोड़ा सा, वो फैट उसका ग्लू ग्लूकोज का काम करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज अपने बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे हर मसल्स में, हर अपने मसल्स पार्ट में थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज रहता ही है। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है, जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं या कुछ होते हैं तो फटिकनेस जब पैदा होता है तब मसल्स का ग्लूकोज खत्म हो जाता है। यानी फिर अपन क्या बोलते हैं इसको, बहुत बार आपने देखा होगा कोई दौड़ते दौड़ते एकदम बेहोश हो जाता होगा या क्रैम्प आ जाता होगा, क्या होता है उसके बॉडी का ग्लूकोज मतलब शुगर लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। फिर क्या करते हैं उसको हम ग्लूकोज का पाउडर या बिस्किट वगैरह, है ना, ऐसा कुछ खिलाते देखे होंगे आपने। इसको शक्कर का पानी पिलाओ या ग्लूकोज खिलाओ, उसकी वजह से फिर वो बाद में और से रिकवरी करती है। जो मैराथन रनर रहता है उनको चॉकलेट, वो मुंह में चॉकलेट लेके दौड़ते हैं मीठी वाली, ताकि उनका ग्लूकोज मेंटेन रहे और वो अपना स्पीड वर्क कंटिन्यू कर सके। इसलिए फैट भी यहाँ पर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अपने शरीर का फटिकनेस तक जब तक बॉडी जाती है, थक जाते हैं अपन, उसके बाद ये फैट वहां पर अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब तक फैट अपना रिड्यूस नहीं होता तब तक फिर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर एक एथलीट का ये सेम रहता है। हेलो हेलो। Yes. Yes, sir. फैट Yes, का sir. परसेंटेज 27 है, इसका भी ग्राम कितना निकला? 84 ग्राम। कैलकुलेट करोगे आपके सामने सब, आपको भी दिख रहा है। फिर प्रोटीन का है 21। प्रोटीन सबसे यूजफुल है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इसलिए है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अपने मसल्स, अपने मांस, अपने मस्कुलर जो एंडोरेंस है उसको बढ़ाता है, इसलिए प्रोटीन वहां पर यूजफुल है। फैट इसलिए यूजफुल है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो फैट वहां पर काम करेगा, इसलिए वो यूजफुल है। ठीक है, बाकी कॉमन कॉमन जो आदमी होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन नहीं होते हैं, उनको भी आप जो बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है इतने में से भी आप जैसे 2941, ये तो टोटल हो गया। बेसिक कितना निकला था? 1900। 1921 बेसिक, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो इसके हिसाब से, अगर किसी का बेसिक प्लान आपको बनाना है तो। समझ गए? किसी को कुछ डाउट? डाउट है किसी को? हेलो? No, sir. नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिए ना? Yes, sir. ठीक है। मैं कुछ शीट दिए भेजता हूँ आपको। मैं कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप। मेजर टास्क आपको फिर, जैसे आपने अभी उनको एजिलिटी लिए और क्या फ्लेक्सिबिलिटी लिए, स्ट्रेंथ लिए, जिसका वीकनेस है, तो वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या ट्रेनिंग देना है वो भी है आपके सिलेबस में। तो ये सब भी आप नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। इसका निकालिए स्क्रीनशॉट पहले। मेजर टास्क ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है। निकाल लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir.
ये निकाल लीजिए, ये पढ़े होंगे आपने, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओवरलोड, प्रोग्रेशन, कंटिन्यूटी, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये भी प्रिंसिपल ही है उसके। एडाप्टेशन, यूज, डिसयूज, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हो गए। निकाल लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हाँ, So ये प्रैक्टिकल में लिखना है क्या? नहीं लिखना नहीं बेटा, आपके पास रखिए, मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। Yes, sir. अभी आपने स्ट्रेंथ का ये किए थे, स्ट्रेंथ का टेस्ट लिए थे ना, क्या लिए थे स्ट्रेंथ में? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और मेडिसिन बॉल थ्रो, Medicine ball. है ना। अगर किसी का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या मेडिसिन बॉल थ्रो वीक है या उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो अपने को उसमें मार्क्स से पता चलता है कि इसके शोल्डर स्ट्रेंथ पावर कम है, तो वो अपने को बढ़ाना कैसे, ट्रेनिंग मेथड देखो, याद ही स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मेथड, है ना। अभी नीचे क्या लिखा हुआ है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक है, इसमें स्ट्रेंथ में वो क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए सबका। उसके बाद ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, ये वाली, इसका भी निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी एंडोरेंस, एंडोरेंस के लिए कौन सा टेस्ट लिए थे आपने? एंडोरेंस के लिए नहीं लिए थे शायद, है ना। एंडोरेंस के लिए रख लीजिए आपके पास, मैं समझा दूंगा फिर भी आपको। इसमें दो टाइप के एंडोरेंस होते हैं, बेसिक एंडोरेंस एंड स्पेसिफिक एंडोरेंस। क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये एंडोरेंस के मेथड है, कंटिन्यूअस मेथड, नीचे इंटरवल ट्रेनिंग दिया है, वो भी एक मेथड है। स्पीड के बारे में अपन ने पढ़े, एजिलिटी में स्पीड और एजिलिटी दोनों साथ में, उसको इम्प्रूव कैसे करना है इसमें वो पढ़ेंगे अपन। ये मेथड है उसके स्पीड बढ़ाने के, एजिलिटी बढ़ाने के, एक्सेलरेशन रन, पेस रेसेस, सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग का एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या?
Yes, sir. अच्छा, तो ये आज का ही वीडियो है। आज हमारे एकेडमी में ईश्वर देशमुख क्रिकेट एकेडमी है जहाँ अपनी, वहाँ पर ये सर्किट ट्रेनिंग हुआ है। पहले उसने क्या किया, वहाँ से क्या स्टार्ट किया, इसको क्या बोलते पता है आपको? कोई बता सकता है? सर वार्म अप। नहीं बेटा, ये जो एक्टिविटी कर रहा है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्या है इसका नाम? ये जो ड्रिल कर रहा है, ये वाला, ये जो बैट लेके दौड़ रहा है, कोई बता सकता है? शटल रन। हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ शटल रन। शटल रन जैसा है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक गेम को लेके, ये जो शटल रन कर रहा है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है? किसी को पता है? एक स्पेसिफिक गेम की एक्टिविटी के साथ कर रहे हैं ना। क्रिकेट में आप देखते होंगे रनिंग बिटवीन दी होते हैं, रन दौड़ते हैं बैट्समैन लोग। यस सर। हाँ, तो ये साथ में उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है और उसका स्पीड वर्क भी हो रहा है साथ में, है ना। जो पहले किया ये वाला, सो करते हैं हाई नी एक्शन। हाई नी एक्शन, नी अप कर रहा है, दिख रहा है हर, और नीचे जो रखा हुआ है वो लैडर है, उसको बोलते हैं लैडर ना। ये उसने बैट उठाया, वहां से हाई नी एक्शन किया, ये शटल रन किया। कौन सा वर्कआउट हो रहा है ये बता सकते हो कोई? ठीक है, यहाँ से इसको रेस्ट है, यहाँ से इतना रेस्ट है, नेक्स्ट कौन तक जाने तक, फिर स्टार्ट किया उसने। यह एक्टिविटी का नाम कोई बता सकता है? इसको बोलते हैं साइडवेज रनिंग। साइडवेज होता है, साइडवेज। अभी देखो यहाँ से उसको रेस्ट है, अब वो आगे जाएगा। क्या मार रहा है अभी वो? पुशअप्स। पुशअप्स। तो ये बताने का ये मोटिव है आपको कि ये कंटिन्यू में जा, विदाउट रेस्ट। जो विदाउट रेस्ट वाले वर्कआउट होते हैं वो आते हैं आपके सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। एक सर्किट में चलता है, करंट फ्लो होता है वायर में, सर्किट में कंटिन्यू फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन रही तो, है ना। वैसा ही ये कंटिन्यू विदाउट रेस्ट आपको पूरा स्टेशंस बनाए जाते हैं यहाँ पर। जैसे पहले उसने हाई नीज किया, फिर उसके बाद शटल रन किया, है ना। उसके बाद वहां पर साइडवेज किया, उसके बाद अभी पुशअप्स कर रहा है, उसके बाद और एक्टिविटी बाकी है उसकी, वो सब कर रहा है। तो ये होगा सर्किट ट्रेनिंग। एक सर्किट बनाया जाता है, वो सर्किट कंप्लीट होने तक आपको वो पूरा टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है। ठीक है, ऐसे बाकी और ट्रेनिंग है, इससे आपके स्पीड इंप्रूव होती है और आपकी एजिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, मैंने जितना आपको भेजा ना अभी, उतना आप स्टडी करके रखो, फिर मैं मंडे को आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। और जिसका बाकी है मंडे को जल्दी जल्दी हम अभी का पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो, और किसी का जिसका बाकी है डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है, समझ गया? यस। किसी को कुछ डाउट है कुछ? मैथिली, रागिनी, आयशा, No, sir. No, sir. यस सर। कुछ डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, तो मंडे के लिए सर रेडी मैंने हो वो जाओ। वीडियो बना ली हूँ जो आपने बोले थे ना करेक्शन के लिए, तो मंडे को दिखा देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, यस आप लीव सर कर सकते हो। हेलो हाँ बोलो। सर। हाँ, सर जो पीडीएफ आपने बोले थे हमें बना के सेंड कर दिया अंकिता मैम को। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी कर दो। बाकी जो जिसने सेंड नहीं किया है वो भी सेंड कर देना, मैं चेक कर रहा हूँ उनके इसमें। ठीक है, बच्चा वो स्किन फोल्ड वाला बाकी है। हाँ, सर वो स्किन फोल्ड वाला बाकी, वो भी ऐड करना है उसमें। स्किन फोल्ड अभी रुक जाओ, वो ऐड मत करो, जितना हो गया वो ऐड करो, उसका फिर बाद में बताऊंगा मैं कैसे भेज। ओके।
ठीक है, यू कैन लीव नाउ। सर प्रैक्टिकल मैंने ना अंकिता मैम को भेजी हूँ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके सर।